بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ابراہیم حیدر علی، اسسٹنٹ پروفیسر آف بایولوجی، گورنمنٹ ڈگری کالج میں چنوں۔ میں آپ سب کو اس ویڈیو میں ویلکم کہتا ہوں۔ میں نے جو ہے وہ لاسٹ منتھ اگست کے اینڈ پہ ایک ویڈیو پہلے بھی بنائی تھی۔ اس میں میں نے پنجاب پبلک سروس کمیشن کے جو سیٹس آئی ہیں لیکچررز کی، اس حوالے سے میں نے اپنے سبجیکٹ پہ فوکس کیا تھا کہ میں نے بایولوجی اور باٹنی کے حوالے سے گائیڈ کیا تھا اپنی پریویس ویڈیو میں کہ کیسے کیسے میں نے تیاری کی۔ میں نے اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کیا اور آپ لوگوں کو بھی بتایا کہ کسی طرح سے آپ نے کیسے اس میں پرفارم کرنا ہے اور کیسے آپ اچھے مارکس لے سکتے ہیں، کن کن چیزوں پہ آپ فوکس کریں گے تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ تو ماشاءاللہ اس ویڈیو کا کافی اچھا رسپانس آیا مجھے۔ تقریباً جو ہے وہ 2400 سے 2500 لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا تھا، اور میں آپ سب کا نہایت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اتنا زیادہ عزت افزائی کی۔ کافی لوگوں نے مجھے کمنٹس بھی کیے، مجھے کالز بھی کی، مجھے میسیجز بھی کیے کہ سر ہمیں بہت اچھا لگا، آپ نے ہمیں گائیڈ کیا، مجھے دعائیں بھی دیں۔ اور کئی لوگوں نے کمنٹس میں، میسیجز میں، کالز پہ مجھے کہا کہ سر ہمیں انٹرویو کے لیے بھی گائیڈ لائن دو۔ یہ جو پنجاب پبلک سروس کمیشن ہے، اس کا ایگزام تو ہم کلیئر کر لیں گے، لیکن اگر انٹرویو سچویشن میں ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو میں نے کہا کہ انشاءاللہ میں انٹرویو کے حوالے سے بھی ویڈیو بناؤں گا ایک، جیسے میں نے ٹیسٹ کی ایک کمپریہنسو ویڈیو بنائی تھی۔ تو آج کا جو ہمارا یہ مین جو مقصد ہے اس ویڈیو کو بنانے کا، وہ یہی ہے کہ آپ کو انٹرویو کے لحاظ سے آپ کو گائیڈ کیا جائے کہ انٹرویو میں آپ نے کیسے پرفارم کرنا ہے، کن کن چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے۔ اور یہ جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں یہ صرف بایولوجی یا باٹنی کے لیے نہیں ہے، اس ویڈیو میں تمام سبجیکٹس جو ہیں وہ آ جائیں گے، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں انٹرویو میں وہ ہر سبجیکٹ والے کو اس پہ فوکس کرنا ہوگا، ہر سبجیکٹ والے کو اس چیز پہ جو ہے وہ فوکس کر کے اور اس پہ آپ کہہ لیں کہ عمل کرے گا نا تو اس کے لیے بہتر ہوگا۔ میں نے جو 4 بار پنجاب پبلک سروس کمیشن کا انٹرویو دیا ہے، تو چاروں بار جو میں نے انٹرویوز دیے ہیں، کم از کم جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ مجھے اتنا ضرور آئیڈیا ہو جاتا تھا انٹرویو سے نکلنے کے بعد کہ میں انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤں گا، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انٹرویو کے دوران آپ کو احساس دلاتی ہیں کہ یہ آپ کا انٹرویو کیسا ہوا، اچھا ہوا یا برا ہوا۔ ظاہر ہے کوئی بھی انسان اپنی لائف میں اپنے سبجیکٹ میں پرفیکٹ نہیں ہوتا، کچھ خامیاں ہمارے اندر بھی ہیں، کچھ چیزیں ہمیں بھی ڈیفیکلٹ لگتی ہیں، انٹرویو کے دوران وہ ہمیں پوچھ بھی لیتے ہیں۔ تو آج کے لیکچر میں یہی آپ کو بتانا چاہوں گا اپنا ایکسپیرینس کے لحاظ سے کہ اگر آپ کو کیا کیا وہ چیزیں پوچھیں اور آپ نے اس کو کیسے کیسے آپ نے اس کا جو ہے وہ آنسر دینا۔ تو چیزیں جو ہم ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کا جو انٹرویو ہے اس کے لیے وہ آپ کو انفارم کرتے ہیں، بھائی آپ کو ٹیکسٹ میسیج بھی آ سکتا ہے، آپ کو ای میل بھی آ سکتی ہے کہ آپ کا جو ٹیسٹ کلیئر ہو چکا ہے اور آپ کو فلاں ڈیٹ میں آپ کو انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا۔ تو آپ نے جو ہے وہ انٹرویو کے لیے کیسے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے۔ دیکھیں کانسیپٹس جو ہوتے ہیں سبجیکٹ کے وہ تو اب آپ گین کر چکے ہیں، اس میں امپرومنٹ اتنے سے 1 منتھ 2 منتھ میں کنسیپٹ میں امپرومنٹ نہیں آ سکتی۔ آپ نے ٹیسٹ کلیئر کر لیا، یہ سب سے بڑی ہرڈل تھی آپ کے سامنے۔ 20-25 ہزار لوگوں میں سے آپ ٹاپ 100، ٹاپ 200 میں، ٹاپ 300 میں آپ آ گئے ہیں، اٹ از اے بگ اچیومنٹ۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا کانفیڈنس ہائی ہونا چاہیے، گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا کہ اب میرا انٹرویو ہے، وہ تو ٹیسٹ تھا میں نے لکھ کے کلیئر کر لیا، تو اب انٹرویو میں میں کیسے پرفارم کروں گا یا کروں گی۔ تو گھبرانا نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، جتنا آسانی سے آپ نے ٹیسٹ کلیئر کیا ہے، انٹرویو اس سے بھی کہیں زیادہ آسانی سے کلیئر ہو سکتا ہے اگر آپ 2-4 باتیں ان پہ فوکس کریں تو۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انٹرویو کے لیے آپ کی جو سب سے پہلی چیز جو میٹر کرتی ہے وہ آپ کی ڈریسنگ ہے۔ آپ نے اپنی ڈریسنگ پہ فوکس کرنا ہے۔ اگر آپ میل ہیں تو ظاہر ہے آپ نے پینٹ شرٹ وہ پہننی ہے۔ پینٹ شرٹ جو ہے وہ ایسا ایک ڈریس ہے جس میں آپ جو ہے اپنے آپ کی پرسنالٹی نکھر کے آتی ہے۔ ہاں اگر آپ پینٹ شرٹ پہننے کے عادی نہیں ہیں، کبھی آپ نے پہنی نہیں ہے، تو پھر آپ کا جو روایتی لباس ہے شلوار قمیض
आप उससे पहन सकते हैं। लेकिन उसमें मॉडिफिकेशन ये है कि कम अज़ कम आप उस ड्रेस में वेस्ट कोट का लाजमी इस्तेमाल करें, और अगर आप पैंट शर्ट पहनते हैं तो उसमें टाई का लाजमी इस्तेमाल करें। कुछ लोग समझते हैं कि टाई पहनना ज़रूरी नहीं है, मैं कहता हूँ कि टाई पहनना ज़रूरी है। उसकी रीज़न ये है कि ये कोई आप इसको नॉर्मल इंटरव्यू ना समझें। आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपने यूनिक नज़र आना है, आपने डिफरेंट नज़र आना है, आपने कॉन्फिडेंट नज़र आना है। अगले जो इंटरव्यू लेने वाले हैं उनको नज़र आए आपकी पर्सनैलिटी से भी, आपके कॉन्फिडेंस से, कि आप वहाँ पे परफॉर्म करने आए। अगर आप अपने रवायती लिबास में चले जाएंगे तो बेसिकली वो समझेंगे कि आपने इसको इजीली ले लिया, आपकी नज़र में पीपीएससी की कोई वैल्यू नहीं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस यही है कि ड्रेसिंग के लिहाज से आपने अपनी ड्रेसिंग जो है बेहतरीन करके जानी है। उसमें पैंट शर्ट हो तो आपने साथ टाई लगानी है, कफलिंग्स आप लगा लें, और इसी तरह अगर आपने शलवार कमीज़ पहनी है उसमें कॉटन है या कोई भी आप ड्रेस पहन सकते हैं, और वो जो है वो कलर कोई ऐसा पहने जो आपकी पर्सनैलिटी को सूट करता हो। ज़ाहिर है हर बंदे की अपनी अपनी पर्सनैलिटी है, अपना स्किन कलर है, तो उस लिहाज से वो वाला कलर पहन के जाएँ जो आप पे निखर के आता है। आप जिसको जब आप पहनते हैं तो आपके फ्रेंड्स, आपके घर वाले कहते हैं कि ये कलर तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है, तो ऐसी कोशिश करें, ऐसी ड्रेसिंग करें कि अगला बंदा आपको देखे तो वो उसको भी अच्छा लगे। मेरा एक क्लास फेलो था, तो वो माशाल्लाह उसके नॉलेज इतना अच्छा था कि वो हर टेस्ट क्लियर कर लेता पंजाब पुलिस सर्विस कमीशन का, पर वो इंटरव्यू में रह जाता है। इंटरव्यू में इसलिए भी रह जाता है कि वो शायद उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, वो घबरा जाता है, वो कांपने लग जाता है। ड्रेसिंग में भी वो पीछे रह जाता है। उसने कभी वेस्ट कोट पहन के इंटरव्यू नहीं दिया, उसने 2-3 दफ़ा इंटरव्यू दिया। मैं उसे कहता हूँ यार तुम वेस्ट कोट पहना करो, कहता नहीं यार मैं इसी तरह ही ठीक है, वो मुझे अच्छी नहीं लगती, या वो मुझे मैं हालांकि एक दफ़ा पहली दफ़ा उसने जब इंटरव्यू दिया था तब उसने वेस्ट कोट पहनी थी, लेकिन दूसरी दफ़ा उसने पहनी नहीं। कहता अगर वेस्ट कोट से सिलेक्ट होना था तो फिर मैं पहले ही सिलेक्ट हो जाता, इसलिए मैंने आप वेस्ट कोट नहीं पहन के गया। मैंने कहा भाई आप तो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट लगते हो, परेशान क्यों हो गए? इंटरव्यू आप दे रहे हो तो ज़ाहिर है हर दफ़ा जैसा भी हो आपने मैनेज करके अच्छी ड्रेसिंग करके जाना है। अगर आप फ़ीमेल हैं तो ज़ाहिर है फ़ीमेल आप अपने चॉइस के हिसाब से आप अपना ड्रेस शलवार कमीज़ के साथ दुपट्टा आप इस्तेमाल करें और बेहतरीन जो है वो ड्रेसिंग करके जाएँ, ताकि आप कॉन्फिडेंस लगें, आप फिट लगें उस जॉब के लिए। और कोशिश करें आप ऐसा ड्रेस पहने जो आपका अपना हो। कई बार ऐसा भी होता है कि इंटरव्यू की तैयारी के लिए जब आप जाते हैं तो आपके पास पैंट शर्ट नहीं है, टाई नहीं है, तो आप क्या करते हैं कि जी अपने किसी क्लास फेलो जो है या अपने किसी दोस्त से ड्रेस मांग लेते हैं, ड्रेस, यार मुझे कोट दे दो, यार मुझे टाई दे दो, यार मुझे शर्ट दे दो, मैंने इंटरव्यू के लिए जाना है, वैसे तो मैं पैंट शर्ट पहनता नहीं हूँ, चलो इंटरव्यू के लिए तुम्हारे लिए। भाई आप अपनी ही पहन के जाएँ जो आपको फिटिंग वाली हो। ये होता है जी खुला कोट पहन लिया, खुली शर्ट पहन ली, ऐसी बात नहीं। आपको जो बेस्ट फिट ड्रेस है ना आपने वो पहन के जाना। तो सबसे पहला जो फोकस है ना आपका ड्रेसिंग पे होना चाहिए। दूसरा पॉइंट जो आपने ज़हन में रखना है वो आपका है इंट्रोडक्शन। आपको मैं पहले बता दूं कि इंटरव्यू के अंदर पैनल में 4 से 5 लोग होते हैं। सबसे जो मेन चेयर पे बैठा होता है नंबर 1 पे, वो पीपीएससी का जो मेंबर है कोई, वो हेड जो उस पैनल का, वो वहाँ पे बैठता है सबसे पहले। फिर 2 आपके सब्जेक्ट के वाले से टीचर होते हैं, वो मोस्ट एक्सपीरियंस टीचर आपके सामने बैठे होते हैं। वो उस एरिए के जहाँ आपका इंटरव्यू हो रहा है, पर मेरा मुल्तान में था तो मुल्तान के कोई फेमस या यूनिवर्सिटी के कोई एक्सपीरियंस प्रोफेसर या कोई रिटायर्ड प्रोफेसर, वो किसी को भी बुला सकते हैं, वो आपके सब्जेक्ट के ही हो। 2 लोग होते हैं। जो फोर्थ वन है वो कोई एजुकेशनिस्ट होगा, वो कोई साइकेट्रिस्ट हो सकता है। वो आपके सब्जेक्ट्स के वाले से तो नहीं होंगे, लेकिन वो कोई एजुकेशन फील्ड के ही होंगे, कि कोई साइकेट्रिस्ट होंगे। अगर वो साइकेट्रिस्ट हुए तो वो आपकी साइकोलॉजी समझेंगे, आपका एटीट्यूड देखेंगे, आपको गुस्सा तो नहीं आता, आप परेशान तो नहीं होते, आप घबराते तो नहीं हैं। अगर वो एजुकेशनिस्ट होंगे तो वो आपको एजुकेशन के वाले से सवाल पूछेंगे कि भाई एजुकेशन में आपको कितना इंटरेस्ट है, आप टीचिंग मेथड्स के बारे में पूछ सकते हैं, और भी बेहतर। तो ये इंटरव्यू पैनल में ये 4 से 5 लोग होते हैं। अब आप रूम में इंटर हो गए। रूम में आप जब इंटर होने लगते हैं, सबसे पहले ज़ाहिर है आप परमिशन लेते हैं कि मुझे मे आई कम इन। तो
وہ آپ کو اجازت دیں گے، وہ کہیں گے کہ آ جائیں۔ اب آپ پھر چیئر کے پاس بیٹھ کے، آپ چیئر کے پاس کھڑے ہیں تو پھر آپ کو وہ کہیں گے کہ آپ بیٹھیں، تو آپ نے چیئر کے اوپر بیٹھ جانا۔ آپ نے چیئر کو سرکانا نہیں ہے بیک اینڈ فورتھ، آپ کوشش کریں اس چیئر کے اوپر بیٹھ جائیں، ایزیلی اپنی کمفرٹیبل پوزیشن میں آئیں۔ آپ کے چلنے سے، آپ کے بیٹھنے سے ان کو نہیں لگنا چاہیے کہ آپ گھبرائے ہوئے ہیں۔ آپ کے اندر، آپ کی پرسنالٹی میں وہ کانفیڈنس نظر آنا چاہیے کہ میں پریشان نہیں ہوں، میں گھبرایا ہوا نہیں ہوں، میں ایزیلی فیل کر رہا ہوں۔ اب جو انٹر ہو گئے، اب جو پی پی ایس سی جو ممبر ہیں، موسٹلی کینڈیڈیٹ سے وہ کہتے ہیں کہ انٹروڈیوس یور سیلف، تو اپنا آپ نے انٹروڈکشن تیار کر کے جانا۔ آپ جو ہے اگر انہوں نے اردو میں پوچھا ہے کہ اپنا تعارف کروائیں تو آپ اردو میں تیار کر لیں، اگر انہوں نے انگلش میں پوچھا ہے تو آپ کو انگلش میں اس کو ایکسپلین کرنا پڑے گا۔ تو آپ نے انٹروڈکشن اپنا تیار کرنا ہے، آپ نے وہاں گھبرانا نہیں، آپ پہلے سے اپنا آپ مینٹلی طور پہ تیار ہو کے جائیں کہ انہوں نے مجھے انٹروڈکشن کرنا ہے میرا، تو مجھے کیا کیا بولنا ہے۔ آپ اپنا نام بتائیں گے، اپنی ریزیڈنس بتائیں گے، ضروری نہیں ہے آپ ساری کوالیفیکیشنس بتائیں کہ میں نے میٹرک فلاں سے کیا، ایف اے فلاں سے کیا، نہیں، آپ اپنی ہائیسٹ کوالیفیکیشن بتائیں کہ جیسے میں اگر اپنا انٹروڈکشن دوں گا تو میں کہوں گا مائی نیم از ابراہیم حیدر علی، آئی ایم فرام سٹی میاں چنو، ڈسٹرکٹ خانیوال، اینڈ آئی ہیو completed my MPhil in botany from Bahadur Zagre University Multan, and nowadays I am serving in Government Degree College Mian Channu as an assistant professor of biology۔ تو یہ بریف سا اپنا انٹروڈکشن دیں۔ ہاں، وہ اگر آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے میٹرک کہاں سے کیا، آپ نے ایف اے کہاں سے کیا، بی اے کہاں سے کیا، تو وہ اپنا اپنے سبجیکٹ کے حوالے سے اپنی تب بتائیں۔ ادروائز آپ بریف سا اپنا نام، جگہ، بلدیت بتا سکتے ہیں اور اپنی ہائیسٹ کوالیفیکیشن اور آپ آج کل کیا کر رہے ہیں، بس اس چیز کے بارے میں آپ نے بتانا۔ تو یہ آپ کا انٹروڈکشن تیار ہونا چاہیے۔ اردو میں پوچھے تو کوشش کرنی ہے کہ جس سٹائل میں، جس لینگویج میں وہ کویشچن پوچھ رہے ہیں، آپ کا آنسر بھی اسی لینگویج میں ہونا چاہیے۔ اب آپ انٹروڈکشن آپ نے کروا دیا، پھر وہ ہو سکتا ہے پی پی ایس سی جو ممبر بیٹھا ہے، مین ہیڈ جو ہے، وہ آپ سے کویشچننگ آنسر شروع کر دے۔ وہ کوئی جنرل نالج کے سوال بھی پوچھ سکتا ہے، وہ کوئی کرنٹ افیئرس کے بارے میں بھی پوچھ سکتے ہیں، وہ آپ سے جو ہے وہ پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے، سیاست کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، آپ کے انٹرسٹ، آپ کی ہابیز کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے مینٹلی طور پہ تیار رہنا ہے کہ اگر آپ وہ آپ کی ہابیز کے بارے میں پوچھیں تو آپ نے کیا بتانا ہے۔ آپ کے کرنٹ افیئرس جو آپ کے ملک کی صورتحال چل رہی ہے تو تھوڑا سا اپنا جائزہ لے کے جائیں، اخبار وغیرہ پڑھا کریں۔ جب آپ کا ٹیسٹ کلیئر ہو جائے تو آپ نیوز پیپر ضرور پڑھا کریں اس کے بعد سے، کہ آپ کو ریسنٹلی ہونے والے واقعات، ریسنٹلی ہونے والی جو سیاسی سرگرمیاں ہیں یا سائنس میں جو ریسنٹلی کوئی ایجادات ہوئی ہیں، سب کے بارے میں تھوڑا بہت آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اب آ جائیں سبجیکٹ کے حوالے سے۔ اب میرا سبجیکٹ ہے بایولوجی، باٹنی، تو جو سبجیکٹ کے ممبرز ہیں وہ مجھ سے کویشچننگ آنسرنگ کرنا شروع کرتے ہیں۔ موسٹلی میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، 3-4 دفعہ میں نے انٹرویو دیا تو 2 دفعہ تو لازمی میرے ساتھ ہوا، ایک دفعہ لیکچر کے انٹرویو میں، دوسری دفعہ اسسٹنٹ پروفیسر، کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنا انٹرسٹ بتائیں کہ اب باٹنی میں آپ نے ایم فل کیا ہے تو آپ کی ریسرچ جو ہے ایکالوجی میں، ویسے آپ کو کس چیز میں زیادہ انٹرسٹ تھا، آپ نے ایم ایس سی میں کس چیز، آپ کو انٹرسٹ کون سی چیز جس میں آپ کو عبور حاصل ہے، جس کا آپ کا کنسیپٹ آپ کو لگتا ہے کہ یہ مجھے بہت اچھے طریقے سے آتا ہے، تو میں آپ لوگوں کو مشورہ دوں گا۔ کئی بار تو یہ ہوتا ہے کہ ایز اے کینڈیڈیٹ میں کہہ سکتا تھا کہ بھئی مجھے ساری چیزوں کے بارے میں معلوم ہے، آپ کہیں سے بھی پوچھ لیں، یہ بھی کانفیڈنٹ آنسر ہے، لیکن اس میں آپ پھنس سکتے ہیں۔ اس میں آپ کیسے پھنس سکتے ہیں؟ کیونکہ اب کوئی بھی انسان ہر فیلڈ میں آپ کو بتایا پرفیکٹ نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے وہ کسی ایسے فیلڈ میں سے کویشچننگ کر لیں جو آپ کا ویک ہو، تو پھر آپ کا امپریشن غلط جائے گا، کیونکہ آپ نے پہلے کہہ دیا کہ مجھے ہر چیز کے بارے میں آئیڈیا ہے، کانسیپٹ ہے۔ تو میں آپ کو مشورہ دوں گا، جو میرا ایکسپیرینس ہے میں نے کیا، تو میں اپنا ان کو بتا، آپ کسی بھی سبجیکٹ کے ہیں، آپ اردو کے ہیں، اسلامیات کے ہیں، آپ انگلش کے ہیں، آپ کیمسٹری کے ہیں، آپ فزکس کے ہیں، میتھمیٹکس کے ہیں، جس فیلڈ میں آپ کو عبور حاصل ہے، ظاہر ہے کوئی ایک آدھ فیلڈ ضرور ہوگا جس میں آپ کو عبور حاصل ہے، جیسے بایولوجی، باٹنی میں مجھے انہوں نے پوچھا تو میں نے کہا کہ مجھے بایو کیمسٹری میں، جینیٹکس میں زیادہ انٹرسٹ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں مجھے عبور حاصل ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اس میں انٹرسٹ کیوں ہے؟ تو پھر میں نے اس کے بارے میں بتایا کہ بھئی اس میں بایولوجیکل انفارمیشن ہے، اس میں کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، ہماری جو روزمرہ کی خوراک ہے اس کے بارے میں اس
इसमें सारा नॉलेज है कि हमें क्या क्या चीज़ें हमारे लिए बेस्ट हैं, कहाँ से हमें एनर्जी मिलती है, इनकी कन्वर्जन्स कैसे होती है, जेनेटिक्स में खसूसियात का पता चलता है, कैसे खसूसियात पेरेंट्स से आगे ऑस्ट्रीम में जाती हैं, रूल्स लॉज ऑफ सेग्रीगेशन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो मेंडल ने दिए, तो मैंने इस वाले से आंसर दिए। तो आप जिस फील्ड के भी होंगे, अगर आप मैथमेटिक्स के आप अपना कोई फील्ड बता दें, अगर आप कोई केमिस्ट्री के हैं आप बता दें मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है या इनऑर्गेनिक में, उसकी रीज़न भी ज़हन में रख के जाएँ। आप क्या बताएंगे उनको कि आपको क्यों उसमें इंटरेस्ट है, आप अपना इंटरेस्ट शो करें, उसका बेनिफिट होगा। उसका बेनिफिट ये होगा कि वो जो इंटरव्यूअर है, ज़ाहिर है इखलाकी बात तो यही होगी कि उसने जिसमें आपका इंटरेस्ट पूछा फिर वो उसी में से क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर। पहली बात यह है कि आपने झूठ नहीं बोलना कि मुझे फ़लाँ में इंटरेस्ट, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जिस पे आपका अबूर हासिल हो, किसी भी फील्ड के हैं आप किसी भी सब्जेक्ट के हैं, तो आप उसी के बारे में बताएं जिसमें आपको इंटरेस्ट है और आपको वाकई उस सब्जेक्ट के बारे में काफ़ी आपको अबूर हासिल है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो उसका बेनिफिट ये होगा। मैंने बायोकेमिस्ट्री का, उन्होंने मुझे कार्बोहाइड्रेट्स में से सवाल पूछे, पॉलीसेक्राइड्स में से पूछे, मोनोसेक्राइड्स में से पूछे, लिपिड्स का कार्बोहाइड्रेट्स का कंपैरिजन पूछा मुझे, उन्होंने DNA RNA के बारे में पूछा, मतलब जेनेटिक्स में उन्होंने मुझे लॉज के बारे में पूछा, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, मतलब मुझे मुकम्मल तौर पे निचोड़ना शुरू कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है जितने भी उन्होंने क्वेश्चनिंग किए तो 95 to 97% मैंने आंसर दिए। कोई एक आध ऐसा क्वेश्चन होगा कि जिसको मैंने मतलब, पर उसका मैंने आंसर देने की ज़रूर कोशिश की क्योंकि मुझे उसका पता था, लेकिन किसी एक आध वर्ड में, जैसे अगर आप मेरे सब्जेक्ट फेलो हैं आप समझ सकेंगे, तो उन्होंने मुझसे टेस्ट क्रॉस के बारे में पूछा था, तो उधर मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में था कि भी डोमिनेंट या रिसेसिव के चक्कर में मैं मिस्टेक कर रहा था, तो उन्होंने फिर रिसेसिव कर दिया, मेरी करेक्शन की, तो मुझे खुशी हुई और मैंने कहा जी जी सर ऐसे ही। तो आपने जो वो क्वेश्चनिंग करेंगे आपसे, आपका उसका कॉन्फिडेंटली आंसर आपको आता है, आप कॉन्फिडेंटली आंसर। हाँ, अगर आपको नहीं आता तो तब आपको क्या करना। अब जब मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आता तो मैं फ़ौरन से उसको कॉन्फिडेंटली विद अ स्माइल आंसर दूंगा कि सॉरी सर मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं। फिर वो कोई क्वेश्चन करते हैं मैं उसका आंसर देता हूँ, फिर वो क्वेश्चन करते हैं मैं उसका आंसर देता हूँ, फिर बीच में कोई ऐसा सवाल आ जाता है कि जिसमें आपको उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता। अगर आपको कुछ आइडिया है, आप क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि मुझे भूल जाएगा या मैं गलत ना बोल दूँ, तो आप उसकी कोशिश ही ना करें। आप कह दें कि आई एम सॉरी कि मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं। अब जो एजुकेशनिस्ट बंदा है वो आपसे सवाल पूछना शुरू कर देगा, जो फोर्थ वन है, हो सकता है हेड फिर आपसे क्वेश्चनिंग करने लग जाए जनरल नॉलेज। तो देखें, जो इंटरव्यू है वो आपका लेक्चरशिप का है, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप का है, आपके सब्जेक्ट का है। अगर आप चाहते हैं कि आप इंटरव्यू क्लियर करें, क्वालिफाई करें, तो आपकी टेंशन, आपकी परेशानी ये है कि आपका जो सब्जेक्ट है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देने की कोशिश करें। अगर आपको वो सब्जेक्ट का कोई भी सवाल पूछें उसमें आप ज़ीरो हैं, तो आप आंसर ही नहीं दे रहे प्रॉपर, और जनरल नॉलेज में आप फुल आंसर दिए जा रहे हैं, इंग्लिश के फुल आंसर दिए जा रहे हैं, और साइंटिस्ट के वो या करंट अफेयर्स सियासत के फुल आंसर दिए जा रहे हैं। वो यही समझेंगे कि मतलब आपको सब्जेक्ट पे तो कुछ आता नहीं है, करंट अफेयर्स आपको अच्छे तरीके से आते हैं। तो आपका काम उल्टा होना चाहिए। करंट अफेयर्स अगर आपको नहीं भी पता, जनरल नॉलेज आपका नहीं भी अच्छा, कोई मसला नहीं। मुझे एक दफ़ा उन्होंने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा जनरल नॉलेज के बारे में कि फ़लाँ मुल्क का जो सदर कौन है, तो मुझे नहीं पता था। तो मैंने उनको कहा कि सर मेरा जनरल नॉलेज काफ़ी कमज़ोर है, तो ये तो मतलब मुझे आइडिया ही नहीं, ना ही मुझे याद है कि किस मुल्क का कौन सा है, मुझे सिर्फ अपने मुल्क के अलावा किसी का पता नहीं, मैं हंसने लग गया। तो उनके चेहरे पे भी थोड़ी सी स्माइल आई, तो उन्होंने दोबारा मुझसे उस ऐसी चीज़ों का पूछा ही नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया कि मेरा जनरल नॉलेज इतना अच्छा नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ, एक दो इंटरव्यूज़ में उन्होंने जो भी जनरल नॉलेज पूछा मैंने उसका आंसर दिया। तो जो आपको चीज़ आती है आप उसका आंसर दें, जो आपको चीज़ नहीं आती तुक्का ना लगाएं, गलत ना बताएं, बोंगियाँ ना मारें। आप सिर्फ विद अ स्माइल आप कह दें सॉरी सर मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। और अगर आपको कोई जनरल नॉलेज का सवाल मिस होता है, कोई एजुकेशन फील्ड का, कोई टीचिंग के वाले से कोई सवाल मिस होता है, उसमें आप परेशान नहीं होना। हाँ, सब्जेक्ट के वाले से आपका मिसिंग होगी, वो नेगेटिव इंप्रेशन में जाएगा। हाँ, जनरल नॉलेज का जो सवाल है अगर वो पूछते हैं तो वो भी नेगेटिव जा सकता है, लेकिन उसमें ये है कि आपका सब्जेक्ट में जितने भी आपने सवालात के जवाब दिए अच्छे दिए हैं, फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत है।
हाँ, अगर आपने सब्जेक्ट के 50-50 आंसर दिए हैं, आधे ठीक आधे गलत, और जनरल नॉलेज भी आपका अच्छा नहीं हुआ, तो फिर खतरे की बात है कि फिर हो सकता है कि आपका वो इंटरव्यू का इम्प्रेशन उनके ऊपर अच्छा ना पड़े। सब्जेक्ट पे आपका मेन फोकस है। जनरल नॉलेज का आंसर दे दें तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी आता तो परेशान नहीं होना। फिर एक और चीज़ जो मैंने 4 बार इंटरव्यू दिया है, तो एक डेमॉन्स्ट्रेशन का भी वो कह देते हैं अक्सर, कि रूम के अंदर हो सकता है वाइट बोर्ड पड़ा हो किसी कोने में, और आपको कह दें वो मार्कर के साथ कि भाई ये आपके सामने मार्कर है, तो किसी टॉपिक का वो नाम लें और कहें कि फ़लाँ टॉपिक के ऊपर आपने 2-3 मिनट आपने गुफ्तगू करनी है, हमें एक्सप्लेन करना है एज ए टीचर। समझिए हम स्टूडेंट हैं, हमें बताएं कि ये क्या होता है। वो आपका टीचिंग मेथड, आपका कॉन्फिडेंस चेक करना चाह रहे हो। तो अगर तो वो अपनी तरफ से कोई टॉपिक दें तो वो तो आपकी किस्मत है कि पता नहीं वो आपको क्या दें। पर मैं आपको मशवरा दूंगा, मेरा जो अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है, जो मैंने किया भी, कि आप कम अज़ कम 2 से 3 टॉपिक्स अपने सब्जेक्ट के, आप उर्दू के हैं, इंग्लिश के हैं, इस्लामियात के हैं, बायो के, केमिस्ट्री के, मैं कोई भी 2 टॉपिक आपने अपने सब्जेक्ट के कोई से भी 2 रैंडमली चूज़ करने हैं, उनकी डेमॉन्स्ट्रेशन तैयार करके जानी। ज़ाहिर है वो पूरा 40 मिनट का लेक्चर तो आपसे लेने से रहे, तो 2-3 मिनट ही आपको अगर बोलना पड़ेगा, अगर वो कहेंगे तो। 2-3 मिनट की गुफ्तगू में आपने मेन जो थीम है ना अपने टॉपिक की, वो एक्सप्लेन कर दें। हाँ, वो अगर अपनी तरफ से कोई टॉपिक दें तो उसमें किस्मत है, तो पता नहीं वो क्या दे दें। लेकिन मुझे उन्होंने कहा था कि आप किसी टॉपिक के ऊपर बोल के दिखाएँ। एक इंटरव्यू में ऐसा हुआ लेक्चरशिप, तो मुझे उन्होंने खड़ा किया, उन्होंने कहा कि वाइट बोर्ड के ऊपर आप ये जो है वो कोई टॉपिक बोल रहे हैं। मैं चूँकि मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी है, तो मैं फोटोसिंथेसिस तैयार करके गया था। मैंने फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन लिखी, उसकी केमिकल इक्वेशन लिखी और इसे एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने उसी के ऊपर क्वेश्चनिंग आंसर शुरू कर दिया एज ए स्टूडेंट के, सर ये ऐसे कैसे है, ये फलां कैसे है। तो मैंने एज ए टीचर फिर एक्सप्लेन करना शुरू किया। तो मुझे तब वो जो बीपीएससी का हेड बैठा था, उसने मुझे कहा वेरी गुड, मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ा दो। देखिए वो लोग जो बैठे हैं वो आपको नौकरी देना चाहते हैं, वो ये बिल्कुल ना समझें कि वो आपसे नौकरी छीनना चाहते हैं। वो तो कई बार एक इंटरव्यू में ऐसा भी हुआ था कि मैं कंफ्यूज हो गया था और मेरी आवाज़ कांपने लगी, तो उन्होंने मुझे कहा भाई हौसला करें, कि आप टेंशन क्यों ले रहे हैं। मुझे उन्होंने स्टेबल करने की कोशिश की। मुझे उन्होंने एक पीपीएससी के चेयरमैन ने अपना कोई वाक़या सुनाना शुरू कर दिया, और मेरे चेहरे पे स्माइल लाई, फ़नी को वाक़या सुनाया, और मैं मतलब कॉन्फिडेंट हो गया दोबारा से। मैं अपने जो है वो, अब कह लें कि मैं फोकस मेरा दोबारा इंटरव्यू पे आ गया। मैं परेशानी थी वो सारी ख़त्म हो गई। तो वो खुद आपको कॉन्फिडेंस देते हैं, वो खुद ही कहते हैं भाई परेशान नहीं हो, आप क्वेश्चन का आंसर दें, नहीं आता तो इट्स ओके। तो मैंने जितने भी आपको बताया 4 बार मैंने इंटरव्यू क्लियर किया है, और चारों बार जब मैं इंटरव्यू दे के निकलता था ना, तो मुझे 80 to 90% श्योर होता था कि मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। और ऐसा ही होता था कि मैं जब इंटरव्यू दे के निकलता था तो मैं खुश होता था, मेरे चेहरे पे एक स्माइल होती थी। हाँ, इंटरव्यू के टाइम पे ज़ाहिर है एक हल्की सी कन्फ्यूजन ज़रूर होती है, एक घबराहट ज़रूर होती है, एक बंदा नर्वस ज़रूर होता है। ज़िंदगी का जो मेरा पहला इंटरव्यू था 2012 में लेक्चरशिप का, पहले इंटरव्यू में मैं ज़्यादा परेशान हुआ था, लेकिन उसके बाद मैं कभी परेशान नहीं हुआ, क्योंकि पहले इंटरव्यू में मुझे जॉब मिल गई थी। बाद में मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुई कि मेरे पास माशाल्लाह जॉब है। लेकिन पहले इंटरव्यू में तो परेशानी होती है, अगर आप लोगों का पहला है तो परेशानी होगी आपको। हो सकता है आप घबरा जाएं उनके सामने। तो मैं आपको ये कहूँगा कि दूध पाक पढ़ें, जब कमरे में दाखिल हों उससे पहले आयतल कुर्सी दूध पाक पढ़ के घर वालों की दुआएं लेकर आप वहाँ पे पहुँचें। और परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जो चीज़ आपको मिल जाती है ना, उसके खोने का डर होता है। जो चीज़ आपके पास अभी आई ही नहीं, अभी आपको मिलनी है, उसके पाने का आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो ये जो बातें मैंने बताई हैं, इनके ऊपर आपने फोकस करना है। ड्रेसिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन आपका अच्छा होना चाहिए, और जनरल नॉलेज आपका अच्छा हो तो वेल एंड गुड, नहीं भी अच्छा कोई मसला नहीं, सब्जेक्ट आपका अच्छा होना चाहिए। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो कॉन्फिडेंटली आंसर दें, अगर नहीं आता तो आप जो है वो स्किप कर दें, सॉरी कर दें। और टीचिंग आप वैसे तो बीएड या एमएड की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है इंटरव्यू के अंदर, मतलब कॉलेज जॉब में वो पूछते भी नहीं है, स्कूल लाइफ में वो ज़्यादा पूछते हैं। लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप टीचिंग मेथड्स के बारे में पढ़ के जाएँ, बीएड की कोई बुक ले लें कि पढ़ाई के क्या तरीके हैं, बच्चों के साथ एग्जामिनेशन सिस्टम के बारे में पढ़ के जाएँ।
अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो मेन नाम है, आपका मिनिस्टर, स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर, हायर एजुकेशन मिनिस्टर, अपने HEC चेयरमैन, इन सब के नाम नशीं आपको होने चाहिए। हो सकता है वो आपसे पूछ लें। मेरे से एक इंटरव्यू में उन्होंने पूछा था कि आपके जो है HED के जो सेक्रेटरी साहब हैं वो कौन है। इस तरह के सवाल वो पूछ सकते हैं, तो वो स्किप भी हो जाए तो कोई इतना इशू नहीं है। मैंने आपको बताया आपका मेन फोकस, आपका वो जो मेन फोकस है वो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पे फोकस करना है, परेशान नहीं होना, अपने आप पे यकीन रखें। और एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ें जो ज़हन से निकाल दें। आप सुनते होंगे यार कि सिफारिश चलती है, पैसा चलता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। 1% भी आपके ज़हन में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। अल्लाह पे यकीन रखें, अपनी स्किल पे, अपने कॉन्फिडेंस आपके ऊपर होना चाहिए, अपनी एबिलिटीज़ पे आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपके नसीब में ये जॉब हुई, ये लेक्चरशिप आपके नसीब में हुई, अगर आपका रिस्क यहीं लिखा हुआ, तो कोई भी बंदा आपसे नहीं छीन सकता। और जो है ये दिल से निकाल दें, ना ही ऐसी कोई कोशिश करें। ये चीज़ें अपने ज़हन से निकाल दें कि रिश्वत चलती है, पैसा चलता है, ना ही आपने ऐसी कोई कोशिश करनी है। ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना कोई सिफारिश की ज़रूरत है। अब लोगों को कालें करना शुरू कर दें कि भी मुझे कोई इंटरव्यू में कौन आ रहा है, पता लगाने की कोशिश करने लगे। ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला पे यकीन रखें, अपने वालिदैन की दुआएं, अपनी एबिलिटीज़ पे यकीन रखें। इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे अगर आपका रिस्क इसी जॉब में लिखा हुआ तो परेशानी की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करें, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। मुझे भी हमेशा दुआ में याद रखें। और कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो किसी भी टॉपिक के हवाले से, मैं अपना नंबर पहले भी शेयर किया था, मैं फिर शेयर कर देता हूँ इस वीडियो में भी। आपको किसी किस्म की भी कोई हेल्प की ज़रूरत है, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें। कोई टॉपिक, कोई टर्म नहीं समझ आ रही, कोई और बात, कोई मशवरा लेना चाह रहे हैं अपने सब्जेक्ट के हवाले से, तो मैं इंशाल्लाह हाज़िर हूँ। इस वीडियो में कोई मैंने सब्जेक्ट की बातें नहीं की, इस तमाम सब्जेक्ट्स के लिए था। तमाम लोगों को इस पे अमल करना चाहिए। मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, मैंने जो किया मैंने वो बताया। अगर आप इन चीज़ों पे अमल करेंगे तो आपको भी बेनिफिट होगा। लेकिन ज़ाहिर है आप अपनी लाइफ में और भी आपके एक्सपीरियंस दोस्त होंगे, टीचर्स होंगे, आप उनके पास भी जाएंगे, हो सकता है उनसे भी आप गाइडेंस ले, आपको और ज़्यादा अच्छे मुफीद मशवरे मिल जाएंगे। मैंने तो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, आपको दूसरे लोग भी अपने एक्सपीरियंस से शेयर करेंगे, तो आप मेंटली तौर पे तैयार होके जाएं, कॉन्फिडेंट होके जाएं, परेशान नहीं होना। कोई परेशानी नहीं है, जॉब ना मिली तो कोई मसला नहीं, ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी, और भी जॉब्स आएंगी, हो सकता है इससे भी कोई अच्छी जॉब आपका वेट कर रही है। परेशानी की बात नहीं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। जैसे एंड पे मैं अपना नंबर लिख रहा हूँ, इसको आपने नोट कर लेना है। और मेरे फेसबुक पेज भी है, तो आप मेरे नाम से इब्राहिम हैदर अली के नाम से आप सर्च कर लें, आप वहीं पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें, और ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। जब भी मैं कोई वीडियो कोई अपलोड करूँगा आपको पता चलेगा। और मेरे पेज के ऊपर, मेरे चैनल के ऊपर जो है FSC बायोलॉजी के लेक्चर्स भी मौजूद हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ गाए बगाए जब भी मुझे टाइम मिले मैं कोई टॉपिक उधर अपलोड कर दूँ। आपको किसी टॉपिक में कोई गाइडेंस चाहिए हो, कोई मतलब कोई आप सजेशन देना चाहते हो अपनी तरफ से, तो मुझे बताएं ज़रूर। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपके टॉपिक पे भी लेक्चर दूँ या आपके सजेशन पे भी अमल करूँ। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।